The day No. I just filled the form of ICR and I just purchased your agri mock test, sir. And I think that was a good decision for me. The mock test is very beneficial. I will suggest my juniors that you must try this mock test. That is very good. Okay, You will fine. come to know about many questions. Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. I am your mentor Arif Prasad. So today in this video we have All India 28th ranker in the ICR PG exam entomology in the year 2024. I welcome you to this session, Shashi, and Thank you, she is sir. here to explain in detail about her preparation journey, like how she has prepared for this exam and how she was able to secure this rank of 28. And she is here to motivate your juniors and also the students who are giving this, who will be giving these exams in the future years. So again, I welcome you to this session. So before we proceed, please introduce yourself. Good evening, sir. My name is Sashi Kiran. I have completed my graduation from Bhola Paswan Sahasi Agricultural College, which comes under Bihar Agricultural University, Sabor. I have secured an all-India rank of 28th and category rank of 9th in the subjects of entomology and nematology. And sir, I have been allotted to RPCAU Pusa. Okay. So Yes, sir. congratulations on securing the top rank and also congratulations on getting allotted to the RPCU Bihar. So I Thank you, can see sir. that you are from Bihar and you have chosen Bihar for your PG. So what's the reason? Like, is it because like you want to stay in your state? Yes, sir. Mainly this is the reason I just wanted to मतलब पास रहना चाहते थे हम घर के. Yes, sir. Okay, okay, that was the reason. Fine. So before, And one more reason, sir, I just wanted to get into hubs, IRI hubs, but all those hubs were so far from Bihar. For example, Nagpur, Cuttack, Hyderabad. So that I didn't prefer all of those. okay. Yes, sir. So like before we start to discuss about your preparation journey, let me start asking you some questions so that we can. Yes, sir. So first thing, like the same question which I ask every topper with whom I do the interview. So it's like why MSc and why entomology? Sir, I MSc because I just went with the flow. You can say, honestly, अगर कहें तो it was peer pressure. Everyone was preparing for some subject, so I also thought, why not I? I must also prepare for a subject. And so, why entomology? First of all, it's a long story. पहले मतलब 3 साल में 4 साल के कोर्स में मैंने 3 साल तक नीट का एग्जाम दिया विच आई डिडंट क्लियर. एंड आफ्टर दैट 1 साल के अंदर मैंने काफी सारे सब्जेक्ट चेंज किए. जैसे मैंने ऑब्वियसली हॉर्टिकल्चर मैंने 3 महीने पढ़ा. आफ्टर दैट सर मैंने प्लांट साइंस को भी वैसे लास्ट मोमेंट मैंने सोचा प्लांट साइंस का, बट फिर मेरे सीनियर्स ने बोले कि मतलब इसमें काफी सारे सब्जेक्ट्स है और बहुत ज्यादा लेट हो चुका है तुम्हारे प्रिपरेशन के लिए. उसके बाद फिर एंटेमो में मुझे सेकेंड सेमेस्टर से ही थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था उस पार्ट में, तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया मतलब. और ऑलमोस्ट जब मैंने फॉर्म फिल किया मतलब आईसीआर का, तब मैंने स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन ऑफ एंटेमोलॉजी. यस सर. एंड दिस Okay. इज द बैक स्टोरी ऑफ दिस सब्जेक्ट. यस सर. That's how like it's basically because of the interest that you have developed in the subject, you have chosen यस सर. technology. And what यस after सर. MSc, like you have not even thought of it, not yet thought of it. Like what after MSc? व्हाट सर? Like what after MSc? Like you have not yet thought of this thing. No sir, right now I don't have any clarity कि right after MSc what I have to do, but now I have to just pursue this only. Yes sir. Okay, okay, fine. So nice. Like this is how like the students can get a information. Like सबके लिए वही होता है कि खुद को पता नहीं रहता कि क्या है next. Like only after getting into MSc, like we start exploring the things. Like हमें पता चलता है कि क्या क्या opportunities है हमारे पास और कहाँ Yes sir. हम मतलब we will fit better. So that's how we get to know it. Like from the scratch किसी को Yes ऐसा sir. पता नहीं रहता है कि okay मैं MSc करूंगा उसके बाद PhD करूंगा उसके बाद वो करूंगा. Like they are determined people like who know everything, but it's not the same for everyone. Like everyone has Yes a sir. different story. Okay, that's what like I wanted to convey from this video. Like ऐसा ही होता है stories realistic. Like जब भी मैं MSc मैंने किया था मुझे भी कुछ काफी ज्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना चाहिए. MSc के बाद PhD करना भी है या नहीं करना है, और मुझे तो ऑनेस्टली पता भी नहीं था कि कितना साल का PhD होता है उसके बाद. So this is how it was. Okay. So next, we'll Yes just sir. start with the list of books that you have referred and your preparation journey. Just tell me about your preparation
and the subjects that you have read and how you have prepared for this exam. So first of all, in this subject, entomology और nematology दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. entomology मतलब मेजर पोर्शन है एज कम्पेयर टू नेमेटोलॉजी. तो entomology में भी काफी सारे मतलब पोर्शंस है, सब्जेक्ट्स है, जो सब्जेक्ट्स नहीं सॉरी पोर्शंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि उसमें आ जाते हैं जैसे फिजियोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स एज आई सीनियर, मॉर्फोलॉजी ऑफ इंसेक्ट्स, इकोलॉजी, इंसेक्ट इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी. एंड इस सब चीज के लिए फिर अलग अलग बुक्स रेफर करने पड़ते हैं, क्योंकि ये सब का क्लैरिटी होना जरूरी है, क्योंकि ये सबसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. अब इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये सबसे भी काफी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट से भी दो चार क्वेश्चन रहते ही हैं. बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में जैसे लैक इंसेक्ट्स हो गए, फिर सेरिकल्चर जो करते हैं, फिर एपीकल्चर, ये सब से भी अच्छे क्वेश्चंस देखे जाते हैं जो कि इजी है, लोग कर सकते हैं. और फिर सर आईपीएम, ये सब मेजर पोर्शंस है एंटोमोलॉजी के, जिससे आपको मेजर पोर्शन कवर हो जाएंगे. और एंड फिर सर निमेटोलॉजी के लिए मेनली ये मैंने उतने अच्छे से निमेटोलॉजी नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं था, क्योंकि मैं 2.5 से 3 मंथ में मैं इतने कितना ही Okay. कर सकती Could थी ask अकॉर्डिंग this, टू माई. like, यस सर. what was your total duration of your preparation for this exam? तुमने So कितना? honestly, yes, sir. Honestly speaking, it was 2.5 to 3 months only. I started in mid of April. Yes, sir. My preparation. उस टाइम ही मैंने फॉर्म फिल किया था आईसीआर का. और मैंने उस टाइम ही सोचा कि अगर प्लांट साइंस नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, तो और क्या किया जाए, मुझे किस में इंटरेस्ट है. फिर मैंने सोचा कि कोई एंटोमोलॉजी में था इंटरेस्ट, फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है एंटोमोलॉजी कर देते हैं. फिर मैंने जिस दिन उस दिन ही एंटोमोलॉजी मैंने भरा, उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया. और ऐसा नहीं है कि 2.5 या फिर 3 मंथ्स में ऐसा है कि मैंने फाकीबाजी करके बढ़ा. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने 5 से 6 घंटे कंटिन्यूअस अपने पढ़ते थे, और उसमें रिकॉल करना, रिवीजन करना. ऐसा नहीं है कि 4-5 घंटे बस पढ़ लिए तो वो हो गया. हमेशा रिकॉल करते रहते थे, मेरा आदत है ये रिकॉल करना, रिवीजन करने का. और जैसे जब फ्री हुए तो एग्री एडिट का टेस्ट लिए हुए थे हम, तो फ्री होते थे तो हम एग्री एडिट का टेस्ट दे दिया करते थे. उससे काफी पता चलता था कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस क्या है. बिकॉज पढ़ने से बस ऐसा होता है कि हम बस पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं. उससे पता नहीं चलता कि हमको किस डायरेक्शन में पढ़ना है, इस चैप्टर से हमको कितना मतलब बेसिक ही कंप्लीट करना है या फिर इसके हाई लेवल पे पढ़ना है. कोई कोई चैप्टर्स होते हैं जिसमें बस बेसिक कर लेंगे तो ठीक है, उसमें डेप्थ में नहीं जाना है. बट देयर आर सम सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स जिसमें आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ना होता है. अगर आप बस ऐसे ऊपर से पढ़ लेंगे तो दैट इज नॉट इनफ. तो इसे टेस्ट देने से मुझे काफी आइडिया आया कि नहीं नहीं, इस चैप्टर से मुझे और अलग पढ़ना पड़ेगा, अलग मटेरियल मुझे प्रेफर करना पड़ेगा, बस इससे ही नहीं होने वाला है. तो टेस्ट सच में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था मेरे इस जर्नी में. यस सर. द डे So, आई जस्ट filled the form of ICR and I just purchased your agri mock test, sir. And I think that was a good decision for me. so basically, student, Yes, like sir. your suggestion to the juniors is like if they are preparing for this exam, like they should be obviously attending the mock test questions. Without attending a mock test, like it would be very difficult to understand like in which direction they have to prepare, what to stress, like which topics to give more importance. Like everything will be sorted if they are attending some standard set of mock test, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So next, we'll just move forward, and you have some books here. Like you can just explain few things about like how you are referred these books and what is important and how it is. ये सर. सर जब मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं बस इंसेक्टा पढ़ती थी उस टाइम. मुझे लगता है मैं 15 दिन तक बस इंसेक्टा ही पढ़ती रही, क्योंकि मुझे लगा कि बस इंसेक्टा ही आता होगा नॉर्मल. इसमें इसमें मॉर्फोलॉजी है, फिजियोलॉजी है एंड समव्हाट टैक्सोनॉमी वगैरह है. तो मुझे लगता था कि इजी है, बिकॉज हम लोग सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हुए थे. तो होता था कि हाँ ये इसी लेवल का क्वेश्चंस रहता होगा, बस इसी लेवल का. उसके बाद फिर मैंने इसे पढ़ने मतलब जब ये पढ़ा, उसके बाद फिर मैंने मॉक टेस्ट सोचा कि अब तो कंप्लीट हो गया मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, अब चलो मॉक टेस्ट देते, क्वेश्चंस तो बन जाएंगे. बट ऐसा नहीं था. जब मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किया तो आई थिंक अगर 30 क्वेश्चन है तो उसमें से आप कह सकते हैं कि 15-18 क्वेश्चंस बने, और उसके आगे क्वेश्चंस हमसे ऐसा ऐसा वर्ड्स था कि हमको समझ भी नहीं आता कि ये क्या है. फिर मैंने सोचा कि हो सकता है ये आउट ऑफ सिलेबस होंगे. फिर पीवाईक्यू देखा तो उसमें थे वैसे क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में थे. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, तब प्रिपरेशन मेरा ऑब्वियसली इस बुक से नहीं होगा और ज्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा. तो फिर से मैंने इंसेक्टा के बाद अप्लाइड एंटोमोलॉजी, जो कि रघुमूर्ति एंड श्रीनिवासन के द्वारा लिखा गया है. उसके बाद सर फिर अप्लाइड एंटोमोलॉजी जो है जीएस रेड्डी का, वो हॉर्टिकल्चरल और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के पेस्ट और डिजीज के लिए मैंने रेफर किया था. तो काफी अच्छे से सारे चीज कंप्लीट हो जाएंगे. बस वही है कि आपको बार बार रिवीजन कर देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक नेम्स है, वो सब आप भूल सकते हैं. पेस्ट वेक्टर्स ये सब
थोड़ा होता है कि हाँ बार बार अगर रिकॉल करना, रिवीजन करने से ही याद रहता है, तो रिवीजन एंड रिकॉल इज मस्ट, चाहे आप कितना भी पढ़े, वो फॉर मी इट्स वाज बेनिफिशियल। Insecta, sir, like you have completely read this Insecta full Yes, book? sir. And sir, you have to read this thoroughly up to I think 8 or 9 times, and you have to revise it thoroughly. इंसेक्टा में सर ऐसा लगता है कि हाँ कंप्लीट हो गया, बट अगर इतने छोटे छोटे चीज रहते हैं कि आपको मतलब बेसिक है इंसेक्टा, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एंटोमोलॉजी यू हैव टू कंप्लीट दिस थॉरोली। तो ये सर, ताकि इसके बाद ही आपको अगर हाई लेवल के अगर जो बुक्स हैं, मतलब आगे जो जिससे क्वेश्चंस आते हैं आपको समझ में आएंगे। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा तो फिर यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। यस तो जो सर। नेक्स्ट बुक है जो सेकंड वाला है, इसको भी पूरा पढ़ा था, या मतलब इसमें भी थोड़ा डिवीजन से कुछ? तो सर ये तीनों बुक जो यहाँ पे मैंने ये टोटल पूरा ही पढ़ा था, मतलब एक एक पेज बार बार मैंने रिवीजन किया था, मतलब ये तीनों। और 3 महीना में जितने मैंने बुक के लिस्ट दिए हैं मैंने सारे ही कवर किए थे अच्छे से, कोई कोई को छोड़ करके। नहीं तो ऐसे ये सब जो बुक बता रही है तीन, काफी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से रिवीजन मैं कर दी थी, और मेरा टारगेट रहता था कि हाँ जल्दी से कंप्लीट करना, एक वीक में एटलीस्ट एक बुक मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि हम उसको रिवाइज करें। ऑब्वियसली अगर टाइम कम है तो थोड़ा एफर्ट ज्यादा डालना पड़ेगा, और एट दैट टाइम मेरा ईएलपी चल रहा था, तो ऑब्वियसली उसमें ज्यादा टाइम मेरा इन्वेस्ट हो जाता था एज कम्पेयर टू ऐसे पढ़ने में। और तो इसलिए थोड़ा टाइम निकालना पड़ता था, बार बार थोड़ा रिवीजन रिकॉल वो सब करना पड़ता था सर। Okay, so you are यस सर। suggesting to your junior Cs, like students, if they are preparing for this exam, they have to यस सर। compulsorily read all the three books completely. यस सर। यस Not सर। skip anything from these books. These are the basic to advanced books in the entomology that they have to cover. Okay. यस सर। यस सर। Next, like we have some of the other books, like you can just tell us about more about this. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सर एंटोमोलॉजी रिफ्लेक्सर जो पहले वाली किताब है, वो भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, मतलब मेजोरिटी जो चैप्टर्स थे एक दो चैप्टर छोड़ करके, वैसे मेजोरिटी मैंने सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कवर किए थे। इसमें ऐसे वन लाइनर्स है, तो दैट इज इंटरेस्टिंग ऑल्सो, एंड क्वेश्चन इससे आते हैं काफी। और फिर सर जैसे ट्रिटाइज है, ये भी वन लाइनर है, इस सब में सर थोड़ा हाई लेवल का मतलब डेटा एंड क्या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। एंड फॉर सर ऑब्जेक्टिव आई जस्ट प्रीफर्ड ऑब्जेक्टिव entomology by टीवी प्रसाद, एंड I just used to give mock tests. And sir, for nematology, I just preferred only one book, that is Introductory Plant Nematology by Bajaj and Walia. And sir, YouTube videos of Agri Addict, which the mentors used to guide us. And sir, and obviously Tesh sir. Okay. So this is for the entomology and the last single book for the nematology. Yes sir. Along Sir, with this, because I मेरे पास, yes yeah. sir. So along with सर this, मेरे you पास उतना टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने निमेटोलॉजी में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और बस मैंने नोट्स बनाया यूट्यूब में, एग्री एडिक्ट में सर और मैम जो पढ़ाते थे उससे मैंने नोट्स बनाया, वही कंप्लीट किए। और फिर सर इस बुक से भी थोड़ा बहुत रेफरेंस था, क्योंकि इस बुक के ही रेफरेंस से सर लोग अच्छा से पढ़ाते थे, तो ये सर आई कैन मतलब ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप ये बुक पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के एग्री एडिक्ट में वीडियोस देख सकते हैं निमेटोलॉजी के, बहुत काफी अच्छे हैं सर। okay, okay, that's good. Okay, fine. यस सर। Next, like we come to the end of this प्रिपरेशन, लाइक तुमने तो मेजर सब्जेक्ट्स और जो नेमेटोलॉजी है उसके बारे में पूरा यस सब सर। बोल दिया, और लास्ट बुक है जो जनरल एग्रीकल्चर है उसको कवर करना है। काफी सा सिंपल लगता है ना यस सर। कि 2 स्लाइड में एंटोमोलॉजी खत्म हो गया। अगर मैं प्लान साइंस का इंटरव्यू करता, लाइक 8 से 10 स्लाइड बुक्स ही बुक्स है उसके बाद। यस सर, बिकॉज वहाँ बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। यस सर। सो इट्स गुड, लाइक स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, लाइक लगेगा भी कि ओके इंटरमिडिएट इतना सिंपल है कि 2-3 बुक्स है, 2 स्लाइड में खत्म हो रहा है, 3-4 बुक्स पढ़ने से अच्छे Yes, से। sir, definitely they can try at any time. It's never too late to try. Just है कि अगर आप थोड़ा लेट से भी स्टार्ट करें तो just you have to be consistent and you have to put your efforts and hard work. That's it. You can, अगर हम कर चुके हैं तो obviously anyone can prepare, because obviously सारे लोग थोड़ा हमसे पहले ही स्टार्ट करते हैं, तो अगर इस टाइम पे भी कोई अगर स्टार्ट करता है तो it's not late. You can just put your efforts. Like you are like live examples, like you have started only for 2.5 and to 3 months, and you are dedicated this time, and only within this 3 months, like you have consistently given 5 to 6 hours, which most of the students will give. मैंने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू किया है जिन्होंने 10-12 घंटे या 14 घंटे भी पढ़ रहे थे कंसिस्टेंटली, like this I honestly have just speaking, like honestly, yes, sir. studying like 5 to 6 hours per day is not a like what do you call difficult task. Students can easily Yes, do. sir. And for just for 3 months it's even easy. That's how I can motivate you people. Like if you are like just stuck in only last 3 months, तुम्हारे पास बचा है और application निकल के आया है, और
तब से तुम लोग स्टार्ट करना चाहोगे प्रिपरेशन को. सो शी इज अ एग्जाम्पल, लाइक शी हैज कवर्ड इट. इफ शी हैज डन इट, you can also do it. Yes, anyone can do. Yes, sir. Definitely. Of course. So next, like जनरल एग्रीकल्चर के बारे में बता देना कि कैसे तुमने कवर किया था. Sir, honestly speaking, I have just covered Nemra Sunda at that time. अभी तो मैंने अरुण का टैन थोड़ा बहुत स्टार्ट किया पढ़ना, but at that time I have just covered Nemra Sunda. You can say that कि हाँ पूरा ऑलमोस्ट कर लिया था, बट बस नेमरा सुंडा मैंने अरुण का टैन पढ़ा था, बट बस ये एंटोमोलॉजी वाले जो पोर्शंस थे वो सब पे बेसिकली ज्यादा ध्यान दिया था. जनरल एग्रीकल्चर के लिए भी, और जैसे प्लांट ये फिजियोलॉजी हो गया है, ये सब से क्वेश्चन जनरल एग्रीकल्चर में भी काफी आते हैं. तो ये सब पोर्शंस मैंने अरुण का ध्यान से किया था, और ऐसे नेमरा सुंदर मैंने पूरा ही पढ़ लिया था. यस सर. तो इसके अकॉर्डिंग लाइक तुमने जो नेमरा सुंदा है उसको कम्प्लीटली पढ़ा था और ज्यादातर अरुण कथन को नहीं पढ़ा था, अदर देन द सब्जेक्ट. तो यस एग्जाम सर. देने के बाद तुम्हें कुछ लगा कि तुमने सारा जनरल एग्रीकल्चर का जो क्वेश्चंस था वो अटेंड कर लिया था, या कैसे था, उसमें थोड़ा कुछ बचे रहे थे? सर ऐसा था कि हमको ऐसे सीड रेट वगैरह क्वेश्चन, जो डेटा वाला क्वेश्चन होता है, वो मुझे ऐसे ही पसंद नहीं है. अगर हम पढ़ते भी तो उसको स्किप कर देते हैं. तो ऑब्वियसली वो सारे क्वेश्चन तो डेटा बेस्ड थे. वो मतलब एक दो क्वेश्चन थे, सोयाबीन का सीड रेट आया था इन द खरीफ सीजन, तो हम्म. वो जैसे वो बहुत डाउटफुल था, तो हम वो अटेम्प्ट नहीं किए. तो ऐसे ऑलमोस्ट मेरा क्वेश्चंस हो गए थे. और इस बार के ट्रेंड में सर ज्यादा क्वेश्चंस थे नहीं जनरल एग्रीकल्चर के. तो अगर ऐसे 120 टोटल क्वेश्चन है, तो मैक्स टू मैक्स 15 क्वेश्चन होंगे अगर जनरल एग्रीकल्चर के. तो ऑलमोस्ट हो गए थे. वही दो तीन क्वेश्चन छोड़ करके जो थोड़ा डेटा बेस्ड था, तो वो सब थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, नहीं तो हो गया था सर. Okay, almost like you are saying like there were around 15 questions from general agriculture in ICRPG exam of 2024 in the यस inter. सर. Okay. यस सर. So within that, like apart from like तुमने जैसा बताया कि सीड रेट का जो भी क्वेश्चन है उसके अलावा तुमने काफी कुछ क्वेश्चन सही कर दिया था इसमें. और यस सर. सीधा आउटपुट इज समथिंग लाइक इफ यू आर ओनली स्टडिंग नेमरा सुंदा, तुम्हारे पास कुछ रेसिडुअल नॉलेज है, अच्छा खासा तुम बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़े हो, तो यू कैन रियली मैनेज दिस जनरल एग्रीकल्चर पार्ट. अलग अलग डिफरेंट बुक्स पे जाने की जरूरत नहीं है. ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि अरुण यस पैटर्न सर. को मत पढ़ो और नेमरा सुंदा का पढ़ो. ये सही सर. आई एम ऑल्सो कन्वेइंग दिस ओनली. कैसा नहीं है, आई मतलब मेरे पास कम टाइम था. दैट्स व्हाई आई जस्ट व्हाट कि सिलेक्टेड बुक, सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने डिसाइड किया था कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या नहीं पढ़ना है. क्योंकि उतना टाइम नहीं था कि मैं इतना बुक्स ट्राई करूँ, वो करूँ. मुझे था कि हाँ सारे चीज को एक बार एटलीस्ट हर चीज से कंप्लीट कर लेना है. तो आई विल जस्ट से कि हाँ आप, अगर आपके पास सही में टाइम है तो ऑब्वियसली आप कंप्लीट करें. अरुण कहता है ऑल्सो गुड बुक, यू कैन जस्ट प्रिफर ऑल दोस थिंग्स. यस सर. Okay, okay, fine. So this is all about your complete preparation strategies and also about the complete list of sources or the books that you यस have सर. used in your preparation. So let's यस come to सर. the summary of your preparation. ऐसा जितना भी आप तुमने explain किया अभी तक, like we'll come put it in summary flow. So flow of subjects, like you just first covered entomology and then nematology, right? यस सर. और जो जनरल एग्रीकल्चर था वो साथ साथ में कर रही थी, या मतलब पूरा नेमेटोलॉजी खत्म सर होने? जनरल एग्रीकल्चर आई यूज टू कवर 15 पेजेस पर डे. मतलब नेमरा सुंडा का अगर बात करें तो आई यूज टू कवर 15 पेजेस पर डे. एंड आई जस्ट यूज टू रिवाइज जब टाइम मिले थोड़ा बहुत वैसा. तो 15 पेजेस पर डे इट वाज ऑफ मस्ट फॉर मी. अदर देन दिस एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी, 15 पेजेस पर डे जनरल एग्रीकल्चर ऑफ नेमरा सुंडा. यस सर. Okay. This can be the simple strategy where students can refer 15 to 20 pages of general agriculture every day, and they can just यस सर. concentrate on their subjects one by one. They can cover the topics. Yeah. So यस सर. total duration of your preparation, it is 2.5 to 3 months. यस सर. Okay. And the average hours of study, it is 5 to 6 hours. यस सर. यू कैन. And यस सर. the number of mock tests attended, like you have attended almost all the sets of agri, or like you have skipped some of them. Sir, I have attempted all the sets of tests on entomology, and maybe I have skipped one or two questions. Honestly speaking, I have skipped one or two mock tests of nematology, but I have completed all the mock tests of entomology. Complete So mock. basically, speaking, one or two, yes, sir, complete mock tests. Yes, sir. The mock test is very beneficial. I will suggest my juniors that you must try this mock test. That is very good. Okay, You will fine. come to know about many questions. Yes, sir. Okay. So like in this, like I can ask you this question, like which subject or you can take it as which topic was difficult for you in entomology or nematology. If there are anything like that, like how did you handle it? ऐसे कुछ नोटिस किया कि एक सब पर्टिकुलर टॉपिक पे तुम बहुत सारा टाइम Yes, देना sir. और तुमने उसको कैसे ओवरकम किया?
So for me in nematology portion, toxicology was bit difficult. तो Okay. मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता था इंसेक्टिसाइड्स के नाम याद करना, उसके डोजेस याद करना, तो मतलब कौन सा पेस्टिसाइड्स है, ये सब थोड़ा डिफिकल्ट लगता था। तो मैंने इसे इस पोर्शन को मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया इसमें, मैंने इसे छोड़ दिया था कि मैं लास्ट में करूंगी, नॉट इन द दैट पूरा ऑलमोस्ट लास्ट, बट मैंने एटलीस्ट एक वीक में जैसे बुक्स जैसे कि रिफ्रेशर्स है, ट्रिटाइज है, ये सब में एकदम वन लाइनर्स है। और फिर डीएस रेड्डी में भी 2-3 चैप्टर्स दिए होंगे टॉक्सिकोलॉजी के, तो वो सब चैप्टर्स मैंने कर लिए थे, तो उससे ये इतने जो 3 बुक मैंने बताई, इससे अगर टॉक्सिकोलॉजी अगर लोग कर लेते हैं तो मोर देन एनफ है और कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर कोई एंटोमोलॉजी पोर्शन में अगर डिफिकल्ट अगर किसी को लगेगा थोड़ा, तो टॉक्सिकोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। एंड Oh, टेक्सोनॉमी इज ऑल्सो देयर, बट टेक्सोनॉमी यू कैन जस्ट कवर फ्रॉम इंसेक्टा एंड ऑल्सो फ्रॉम रिफ्रेशर्स, तो इट इजी हो जाएगा फिर। okay. Okay, fine. यस सर। So I guess like you have almost answered every question. Like we have in detail discuss, हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसा तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी था, जर्नी कैसा चला था. Like we come to the end यस of सर। this session of this particular interview with you. So I have two more questions for you. Like one is like what is the role of aggregate in your preparation? So you can answer this question, and we get into the next question. Yes, sir. Sir, honestly speaking, agri edit played a major role in my preparation. As I said earlier, जब मैंने preparation start किया था, because of lack of time, I just मतलब हम पढ़ना जल्दी start कर दिए। मैंने इंसेक्टा बस पढ़ा था, तो उसके मतलब उससे पता चला कि इंसेक्टा इज नॉट इनफ फॉर माई प्रिपरेशन, एज मतलब जैसे मॉक टेस्ट के लिए अपियर हुए, तो मॉक टेस्ट से मुझे बहुत पता चला कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मुझे किस लेवल का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर हम टेस्ट नहीं देते तो हम बस वही बेसिक्स में फंसे रह जाते, या फिर जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर्स हम उसमें उलझे रहते। तो फॉर मी इट वाज रियली, इट हैज हेल्प्ड वेरी मच फॉर मी। यस सर। Okay, thank you. Thank you so much for all the credits to accredited community. Thank you so much. So यस very सर। last question is like, what is your final suggestions to the upcoming ICRPG aspirants? Like, if you want to give any message to them, like you can please. So my only suggestion would be that it's never too late to start the preparation. You just have to be consistent, and yes, sir, you just have to be consistent and put your efforts and hard work. It's never too late. You can just start at any time. Yes, sir. Okay, okay, thank you. Thank you so much for a detailed explanation regarding like what is your story, like how did you start and what was the mindset behind start before starting the preparation. And you have also like in detail explained us like which are the books that you have referred and what you have referred from those books. I guess like the students like who are watching this video will get a lot of benefit, and students will be able to know it's never too late to start and they can start anytime. And if you are able to do it, anyone can do it. Okay. So Yes, sir. students, like Obviously. this is the end of the session, and before ending the session, like just want to give you information about our upcoming Shrestha and Samartha batch. Like both the batches are live Yes, now. sir. The live classes have been already started. We provide the complete course for the 6 major subjects in agriculture for the ICRPG exams, like plant science, soil science, entomology and nematology, agronomy, social science, and horticulture. Like you can download our mobile application either in the Android or iOS, and you can also use this in the laptop through the website www.agritech.in. So if you have any queries related to our courses, you can contact us anytime through this below displayed number. And Shrestha is the target batch 2025 for the exam that is going to take place in the year 2025. And the foundation batch, we have Samartha, where the validity is for the 2 years, and you will be getting the 2 years of live classes, one with the Shrestha and another with the Samartha. Okay, so if you have any queries to ask, you can contact us on this number. We'll be happy to assist. And also, if you have any questions to the students or the topper, you can just comment on this video. She will be happy to assist you people and guide you for this Yes, subject. sir. And she will be there, like she'll be getting the notification. So once you just comment on this video. Yes, sir. Yes, sir. Obviously. Okay. So she Yes, like sir. thank you so much for sparing your valuable Thank you, time sir. and attending this interview for to guide all your juniors. I'm very much happy that you have joined the session. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir.